बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। My dear students, ladies and gentlemen, Shaheen Leaders Academy, Rawalpindi, for the preparation of all tests for the selection in Pakistan Armed Forces like Commissioned Officer, Junior Commissioned Officer, Airman, Airwoman, MTD, Provost, PFNDI, Ground Combatier, Sportsman, and Civilian staff of Pakistan Defence Forces. So we all know that intelligence test as well as the English test and other academic tests are mandatory for the selection as a personnel of defense forces. So today's video we have specially made it for the inductions of airmen in Pakistan Air Force. Now we shall proceed to our video, and contents of this video will be shared with you till end, and you are humbly requested to subscribe our channel to have the fresh videos if you want to learn English from this channel. So this channel is giving services free of cost to the all Pakistani nation as well as our students abroad. Inshallah, from today's lecture and the video lesson you will have a great information regarding this English language and its basic grammar according to the questions and the nature of questions during the lesson. So we proceed to the English test number 2 of today's video. जी डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखें तो आपको नज़र आ रहा है चूज द सिमिलर मीनिंग्स. यू आर टू चूज द सिमिलर मीनिंग्स from this lesson. So I want to highlight that how you will choose its meanings from this option, as well as this is the main word which is in front of the screen, that is known as abandon. Abandon होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, परहेज करना, बचना, एतराज़ करना. एहतराज लफ्ज़ क्या है? एहतराज, छोड़ना. ठीक है, ये अबंडन के मामलों में आता है. तो आज हम देखना चाहते हैं कि इसके नीचे 4 ऑप्शंस हैं, ए, बी, सी एंड डी. अब देखें, विदड्रॉ. विदड्रॉ आप वापस ले लेना. सरेंडर. सरेंडर की मीनिंग देखें बेटा, आपको पता होनी चाहिए. सरेंडर मीन दुश्मन के सामने हथियार डाल देना, शिकस्त तस्लीम कर लेना. दैट इज कॉल्ड सरेंडर. फलां कहते हैं ना कि उसने तो यार मेरे सामने बिल्कुल ही सरेंडर कर दी है. ये शिकस्त के मानों में हो जाता है, किसी के सामने हथियार फेंक देना. नथिंग मीन कोई भी नहीं. नथिंग मीन कोई भी नहीं. और जो एक्यूरेट ऑप्शन है इसका वो है ऑप्शन नंबर डी of question number 1. So dear students, during this video lecture I will tell you that there are certain you can say English language words which are being used and which are giving in your papers of the future to assess either you have some concrete knowledge about this English language or not. So I want to tell you that you are to improve your vocabulary. अपनी vocabulary को मजबूत करें. साथ में इंग्लिश के साथ उर्दू से ही बोल रहा हूँ कि हमारे कुछ बच्चे जिनको सही समझ नहीं आती, ताकि वो साथ साथ उर्दू भी सुने और आसानी से तमाम सवालात और उनके जवाबात को समझ सकें. बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू स्पीक आउट द इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू आउट माई लेक्चर. बट एज फार एज योर comprehension and your mental level is concerned, so I will try my best to speak the Urdu along with this English conversation. Now we proceed to the question number 2. Yes dear students, there is another question. Choose the correct option. यहाँ पे आपने दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करना है. यहाँ पे आपको अल्फाज लिखे हुए नज़र आ रहे हैं ए, बी, सी और डी के अंदर. फर्स्ट वन इज़ फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे, जिसे आप उर्दू ज़बान में कहते हैं जुमातुल मुबारक या जुमा. ठीक है, जुमातुल मुबारक कहते हैं या जुमा आप कहते हैं फ्राइडे. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको डिक्टेट कर दिया ताकि आसानी से समझ आए. अब देखें फ्राइडे के जो स्पेलिंग है, करेक्ट ऑप्शन इसलिए ये कहा है कि नीचे कुछ स्पेलिंग गड़बड़ है भाई.
आपके पास जो 4 ऑप्शन है नीचे की तरफ, इनमें कुछ स्पेलिंग के मसाइल हैं, इनको आपने देखना है। FURIDAY ये बिल्कुल रॉन्ग स्पेलिंग है। FRADAY फ्राइडे ये भी रॉन्ग है। FRIDEY ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। तो आपका जो दुरुस्त ऑप्शन है, जो दुरुस्त स्पेलिंग है, वो है ऑप्शन नंबर ए टू द क्वेश्चन नंबर 2। सो जेंटलमैन, आपको भी मुश्किल अल्फाज अच्छे तरीके से याद कर लेने चाहिए। हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर भी हम इसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, और हमारे पास जो वेबसाइट का एड्रेस है www.shaheenleaderacademy.com, उसको भी बेटा विजिट करें रेगुलरली। इंशाल्लाह आप उससे भी आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिलेंगी। 3 पे फिर वही बात आपके सामने है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डेवलपमेंट जी, मुख्तलिफ जो इन्होंने वर्शन आपके सामने दिए हैं, डिफरेंट स्पेलिंग्स हैं, हमने ये ढूंढना है कि इन चारों ऑप्शंस में जो दुरुस्त ऑप्शन है वो कौन सा है। डेवलपमेंट के स्पेलिंग बेटा मैं आपको यहाँ वैसे नोट करवा देता हूँ। डेवलपमेंट DEVELOPMENT, डेवलपमेंट, ये बेटा है डेवलपमेंट, जिसके मतलब होते हैं जी तरक्की, तरक्की के काम हो रहे हैं, कोई खुशहाली का काम हो रहा है तो उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। जिस तरह कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है उसको हम कहते हैं तरक्की। तरक्की के मानों में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जनाब आप दुरुस्त स्पेलिंग आपने देखने हैं। DEVELOP ये भी रॉन्ग है। DEVELOPMENT, DEVELOPMENT, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इसको पढ़ा जाता है। DEVELOPMENT ये भी स्पेलिंग इसके रॉन्ग है। DEVELOPMENT, अब देख लें इन दोनों की जो स्पेलिंग में क्या आपको डिफरेंट चीज़ लग रही है। ग़ालिबन ये दोनों की स्पेलिंग तो एक जैसे हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे ख्याल में आखिर पे ये ओ था और कुछ क्लरिकल मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पे अगर ओ है तो फिर ये इसका स्पेलिंग भी बिल्कुल रॉन्ग है। और अगर देखा जाए तो जो दुरुस्त स्पेलिंग है DEVELOPMENT, ये दुरुस्त स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो आपको इसका जवाब इंशाल्लाह हम देते हैं कि जो कॉन्स्टेबलरी का लफ्ज़ यूज़ किया गया है, इसके जो एक्यूरेट मीनिंग्स हैं वो कहाँ पे हैं और इसके एक्यूरेट स्पेलिंग्स भी क्या हैं। कॉन्स्टेबलरी CONSTAB, देखें LERY एक ऑप्शन आपके पास ये है, एक LARY है और एक CONSTABLARY है और एक कॉन्स्टेबलरी, ये मुख्तलिफ हैं। जिस तरह आप देखते हैं पैरामिलिट्री फोर्स है जिसको हम कहते हैं FC, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी। ठीक है, जिस तरह मलेशिया है, पाकिस्तान आर्मी है, इसी तरह ये जो डिफरेंट हैं तो आपको इसमें नज़र आएंगे। अब हम आपको देखना चाहते हैं कि ये कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अंदर इसकी स्पेलिंग बिल्कुल दुरुस्त है। तो जनाब यहाँ पे ज़रा गौर से देखें, जो दुरुस्त जवाब है आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है। जो कॉन्स्टेबलरी के राइट स्पेलिंग है वो ऑप्शन नंबर सी के अंदर मौजूद हैं, CONSTABLARY। बाकी जो स्पेलिंग्स हैं, ए ऑप्शन भी रॉन्ग है, बी ऑप्शन भी रॉन्ग है, आपके पास ये ए ऑप्शन है, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, मैं आपको नोट डाउन करा देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी आपका दुरुस्त है और ऑप्शन नंबर आपका ये डी भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, लेकिन सी आपका जो ऑप्शन है वो दुरुस्त है। तो जनाब आगे हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, फिर वही बात जो आपको मैं बताना चाह रहा था कि इसमें जो दुरुस्त स्पेलिंग है वो कौन से हैं। चूज करना है आपने ऑप्शन सुपरिंटेंडेंट। ठीक है, सुपरिंटेंडेंट जिस तरह होता है ना SP, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, जिस तरह एक SP का लफ्ज़ होता है या DSP का लफ्ज़ आप सुनते हैं। ठीक है, या आप किसी डिपार्टमेंट में देखते हैं कि वहाँ पे एक बाकायदा वैकेंसीज होती है और सुपरिंटेंडेंट की वैकेंसी होती है, SUPDT। मैं इसको ज़रा मुखफ़फ़ करके थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि सुपरिंटेंडेंट क्या होते हैं। ये किसी डिपार्टमेंट का, किसी क्लरिकल जॉब साइट का कोई हेड होता है तो उसको डील करता है ऑफिस के मामलात को, ही इज़ नोन एज सुपरिंटेंडेंट। ठीक है जी, तो अब देखते हैं सुपरिंटेंडेंट के जो दुरुस्त स्पेलिंग है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ज़बानी आपको बताता हूँ, ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। SUPER, सुपरिंटेंडेंट, INNTENDENT।
तो ये जनाब जो दुरुस्त ऑप्शन है, ये SUPPR ये भी नहीं है, SUPRI ये भी नहीं है, SUPRI सुपरिटेंडेंट दिस इज आल्सो रॉन्ग। और ये जो दुरुस्त जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी के अंदर इसका दुरुस्त जवाब मौजूद है। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे एक लफ्ज देखें आपके पास, इसके भी आपने अपोजिट बताना है। क्या बताना है इसका? आपने अपोजिट बताना है। तो अपोजिट बेटा नोट करें, स्टेशनरी दो किस्म का होता है, STATIUNARY, ये देखिए इसमें क्या आया हुआ है, ARY है। और एक में होता है STATIONERY, ठीक है, वो होता है ERY। अब बेटा यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा। अब स्टेशनरी के दो डिफरेंसेस हैं, पहले आपको ये पता होने चाहिए। एक स्टेशनरी होता है ARY, ठीक है, उर्दू जबान में हम इसको कहते हैं साकिन, एक जगह पे रुका हुआ, एक जगह पे जामिद, ठहरा हुआ, बिल्कुल स्टैटिक पोजीशन के अंदर, जिसकी किसी किस्म की कोई मूवमेंट ना हो, बिल्कुल एक जगह पे रुका हुआ। और ये जो ऊपर वाला स्टेशनरी है, आप किसी दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे कलम, किताबें, कापियाँ, कागज़, ठीक है, कोई भी किसी किस्म की चीज़ आप परचेज करते हैं, शार्पनर लेते हैं, बॉल पॉइंट लेते हैं, या कोई कॉपी वगैरह लेते हैं, तो ऐसी दुकान से जो चीज़ें आपको पढ़ने लिखने के लिए या ऑफिस यूज़ के लिए मिलती हैं, स्टडी पर्पज़ के लिए मिलती हैं, उनको आप कहते हैं स्टेशनरी, STATIUNERY। और जो बेटा है स्टेशनरी, जैसे आपने एक लफ्ज़ सुना है, एक सेंटेंस भी सुना है, द सन इज स्टेशनरी, ठीक है, उसके लिए हम ये स्टेशनरी का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। मूविंग, हरकत करता हुआ, चलता हुआ, आगे की तरफ जाता हुआ। बुक, किताब को कहते हैं। पेन एंड पेंसिल ये और चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो हमारा जो असल जवाब है, जो इसका प्रॉपरली अगर आप देखें, तो स्टेशनरी होता है एक अपनी जगह पे साकिन, रुका हुआ। तो आपने इसका क्या लिखना है? अपोजिट वर्ड। आपने क्या करना है जनाब? इसका अपोजिट वर्ड लिखना है। स्टेशनरी साकिंग है, लेकिन अगर आप इसका देखें तो मूविंग जो है वो लफ्ज़ बनेगा। एक्यूरेट जो इसका जवाब है वो है मूविंग, एक जगह से दूसरी जगह की तरफ हरकत करता हुआ, मूविंग। बुक भी इसका जवाब नहीं है, पेंसिल भी इसका जवाब नहीं है, और ये जो नॉट मूविंग है ये भी इसका जवाब नहीं है। जो दुरुस्त जवाब है इसका अपोजिट वर्ड स्टेशनरी का वो है मूविंग। जी डियर स्टूडेंट्स, चूज द अपोजिट वर्ड। अब ये देखें जी, ट्रिम्फ एक लफ्ज है आपके सामने, ट्रिम्फ, TRIMPH, ट्रिम्फ। ट्रिम्फ का मतलब होता है बेटा फतह, ठीक है, कामयाबी, जंग को जीत लेना। अपनी एक वार आप लड़ रहे हैं तो उसमें आपको कामयाबी हो जाती है, आपको कामरानी हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं ट्रिम्फ। उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिम्फ। कामयाबी के मानों में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, आपने इसका अपोजिट लिखना है। ट्रिम्फ का क्या लिखना है? अपोजिट लिखना है। अपोजिट में आपको बता देता हूँ, डिफीट, शिकस्त, लॉयल, वफादार, ठीक है। ये शिकस्त के मानों में इस्तेमाल किया जाता है डिफीट को, डिफीट को शिकस्त के मानों में। और लॉयल होते हैं वफादार, वफा निभाने वाला, वफादार, जिस तरह वफादार दोस्त होता है, जिस तरह वफादार जानवर है, ठीक है। और आगे है लफ्स विक्ट्री, ठीक है, विक्ट्री। हम चूंकि इस फतह का अपोजिट ढूंढना चाह रहे हैं, इसका अपोजिट देखना चाहते हैं, यानी फतह और कामयाबी का जो अपोजिट है, तो अल्टीमेटली वो शिकस्त के मानों में होगा। अंडरस्टूड सी बात है। उसका ना ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ना ये विक्ट्री वाला ऑप्शन हो सकता है। विक्ट्री की स्पेलिंग भी थोड़ी सी मिस्टेक है, VIC, ये सी है, VICTORY, विक्ट्री। और ये लायल भी है, ये भी रॉन्ग है। जो दुरुस्त जवाब है आपका वो है शिकस्त। जी डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें तो आपके पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एग्री। क्या है? एग्री। एग्री का मतलब होता है किसी के साथ राज़ी हो जाना, मुत्तफिक होना, किसी की बात मान लेना, रज़ामंद हो जाना, किसी का मुतालबा या जो रिक्वायरमेंट है वो आप मान लें, उसको हम कहते हैं एग्री। किसी की बात के साथ मुत्तफिक हो जाना, मान लेना, उसे आप कहते हैं एग्री। अब हमने इसका अपोजिट लिखना है। एग्री का अपोजिट देखें, सूटेबल, मुनासिब, ये भी नहीं हो सकता, अनसूटेबल ये भी नहीं हो सकता इसका जवाब। डिफर, यस, डिफर का मतलब है इख्तिलाफ करना, किसी की बात को ना मानना। क्या कहते हैं जी? इख्तिलाफ करना। ये साथ साथ में लिखने की कोशिश भी कर रहा हूँ ताकि आपको इनकी मीनिंग्स भी समझ आ जाए और इनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इख्तिलाफ करना, दैट इज कॉल्ड डिफर। Accurate reply to question number 8 is differ.
डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने एक नया वर्ड आ गया है। इसका हमने अपोजिट लिखना है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट क्या होता है और एक्सपोर्ट क्या होता है? फलां बंदा भाई इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है। इम्पोर्ट होता है दर आमद। क्या होता है? दर आमद, अपने मुल्क के अंदर मंगवाना किसी चीज को। और एक्सपोर्ट का एक लफ्ज होता है, वो होता है बरआमद, यानी बैरून मुल्क चीजें भिजवाना। इंटरनल कहते हैं अंदरूनी तौर पे, ये भी हमारा जवाब नहीं है। एक्सटर्नल कहते हैं बैरूनी तौर पे, ये भी हमारा जवाब नहीं है। डिपोर्ट होता है जहाज से नीचे उतार लेना, ये भी हमारा जवाब नहीं है। और इसका जो अपोजिट वर्ड है वो है एक्सपोर्ट। इसको हम कहते हैं बरआमद। अपनी जो जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, सामान है, मशीनरी है, या फसलें हैं, या कोई ऐसी अजनास हैं, उनको आप फॉरेन कंट्रीज में अगर भिजवाते हैं, अपने मुल्क से बाहर कहीं भिजवाते हैं, तो उसको कहते हैं एक्सपोर्ट करना। और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है किसी मुल्क से अपने मुल्क के अंदर, ठीक है, दर मीन अंदर, बार मीन बाहर, ठीक है, ये दोनों जो पर्शियन वर्ड्स हैं इनको आप याद कर लें। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 9 का। स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा वर्जन चेंज हो गया ग्रामर का। आप यहाँ पे देखें तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे भी आपने को ऑप्शन तलाश कर रहे हैं, लेकिन कैसे ऑप्शन तलाश कर रहे हैं? आपके पास एक सेंटेंस है सिंपल, डू नॉट डू, डू नॉट डू फॉर, ये भी नहीं हो सकता। इसके लिए क्या होगा? प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं आपने। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रेपोजिशन का। मैं लिख के दे देता हूँ। प्रेपोजिशन ऐसे अल्फाज हैं जिनका आप इस्तेमाल एक सेंटेंस के अंदर आप करते हैं, जो कि आपके सेंटेंस के अंदर यूज़ होने वाले डिफरेंट जो वर्ड हैं उनके दरमियान रिलेशन को शो करते हैं, और वर्ड को आपस में कनेक्ट करते हैं, और उनकी मीनिंग्स को बिल्कुल एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप इनको दरमियान में से निकाल दें तो उन अल्फाज को, या आपका जो मैसेज होता है उस फिक्रे के अंदर, उसको आप अच्छे तरीके से ना ही कम्युनिकेट कर पाते हैं, और ना अगला सुनने वाला उसको समझ पाता है। तो इनका बड़ा रोल एंड इंतहाई इनका ग्रेटर रोल है हमारी स्पोकन लैंग्वेज के अंदर। तो हम इसमें ये देखेंगे, डू नॉट डू फ्रॉम, ये भी नहीं हो सकता। फ्रॉम होता है के लिए, ये के लिए। फार भी होता है, फ्रॉम होता है की तरफ से, की तरफ से। ही वॉज कमिंग फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, इसको कहते हैं की तरफ से। और फार होता है के लिए, ये के लिए के मानों में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो ये फिट नहीं आएगा। और होता है डू नॉट डू इन, में, इसका मतलब होता है में, किसी चीज़ का अंदर होना, किसी चीज़ के अंदर रहना, दैट इज कॉल्ड में या अंदर, ठीक है जी। एंड देन इज सो, इस तरह, ऐसे, इस तरह या ऐसे के मानों में सो का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये लिहाजा ये जो हमारा जवाब है ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्वेश्चन नंबर 10 का। लिहाजा स्टूडेंट्स, आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है, हाँ वो कमिश्निंग के लिए हो, हाँ वो पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरमैन के लिए हो, एयर वुमेन के लिए हो, एरो टेक्नीशियंस, एरो स्पोर्ट, जिनको एरो ट्रेड्स भी कहा जाता है, उनके लिए हो, तो बेटा आपकी बेसिक ग्रामर को बहुत अच्छे तरीके से चेक किया जाता है कि आपकी ग्रामर ठीक भी है या नहीं है। चूँकि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर और पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस के जो कमीशन ऑफिसर्स हैं, उनका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है। लिहाजा आपकी इंग्लिश का बहुत बेहतर बल्कि स्ट्रांग होना हर लिहाज से ज़रूरी है। तो ये चीज़ें बेटा अपने प्रपोजिशन भी अच्छे तरीके से तैयार करें। इसके ऊपर भी काफ़ी सारी वीडियोस आ रही हैं, इंशाल्लाह हम आपको उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज देंगे और उससे आप ज़रूर फ़वायद उठाएंगे। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास एक नया सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर इसको हम अगर हम पढ़ना चाहें क्वेश्चन नंबर 11 को, तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमने दुरुस्त ऑप्शन का इस्तेमाल करना है, तो वो कैसे है? अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इट इज नो यूज ऑफ क्राइंग स्पिल्ड मिल्क। ये स्पेलिंग मिस्टेक थी थोड़ी सी, मैंने इसको दुरुस्त कर लिया। स्पिल्ड मिल्क, SPILT, स्पिल्ड। अब ये होता है, इसमें हमने, चूंकि ये है ज़रबुल मिसल, ये क्या है? ज़रबुल मिसल, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोवर्ब। क्या कहते हैं? प्रोवर्ब। प्रोवर्ब वो गोल्डन वर्ड्स होते हैं जो कि बुजुर्ग लोगों ने, सीनियर लोगों ने अपने एक तजर्बे की बुनियाद के ऊपर वो बातें कही होती हैं, और वो बातें बिल्कुल एक यूनिवर्सल ट्रुथ का दर्जा रखती हैं। इसीलिए वो जो प्रोवर्ब्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। उनके पेट वर्ड्स हैं, और पेट उनके लिए एक
लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल किया गया है, तो लिहाजा उनको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उर्दू ज़बान में प्रोवर्ब को कहते हैं ज़रबुल अमसाल। क्या कहते हैं जनाब? ज़रबुल अमसाल। ये मैं थोड़ा सा साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। ज़रबुल अमसाल आपने बहुत सुनी होंगी। अगर हम देखें जी, जैसे कि जैसी करोगे वैसी भरोगे, अदले का बदला, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। ठीक है। और जिस तरह के तेल पढ़ें फारसी और बेचें तेल। ठीक है। नो नकद न तेरा उधार। इस तरह की आपने मुख्तलिफ ज़रबुल अमसाल सुनी है, अपनी उर्दू लैंग्वेज के अंदर भी आपने सुनी है, और जब आप इंग्लिश को स्टडी करते हैं तो इसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रबुल अमसाल मिलती हैं। जैसे टिट फॉर टैट, यूनियन इज स्ट्रेंथ, डू गुड एंड हैव गुड। इस तरह की डिफरेंट आपको बहुत ज़्यादा जो ज़रबुल अमसाल हैं वो मिलेंगी। आज आपके सामने सिर्फ एक ज़रबुल मिसल आई है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इट इज़ नो यूज़ ऑफ क्राइंग। अब देखें, फार का मतलब होता है के लिए, ये भी गलत है। फ्राम का मतलब ये भी गलत है, के लिए। इन का मतलब ये भी बिल्कुल है, गलत है। और ओवर, ये बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है। इट इज़ नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, यहाँ पे लफ्ज़ आएगा ओवर। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके असल मीनिंग्स क्या हैं, उर्दू में ये कौन सी कहावत है, कौन सी ज़रबुल मिसल है। इसके लिए जनाब पेट वर्ड जो है, पेट जो कहावत है वो है, अब क्या पछताए होत जब चिड़ियां चुग गई खेत। कि भाई अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। आपने अपने खेत की रखवाली नहीं की है, अपने खेत को लुक आफ्टर नहीं की है, तो चिड़ियों के झुंड आए और वो आपकी फसल बर्बाद करके चले गए। आपकी फसल तबाह बर्बाद हो गई। अब लिहाजा रोने धोने का, चीखने चिल्लाने का, शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए कि ये इसलिए कहते हैं ना कि बेटा ये ज़रबुल मिसल आपके ऊपर भी बड़ी फिट आई है। मेरे प्यारे बच्चे बच्चियां, मेरे बेटे और बेटियां मुल्क कौम के, जो ये पेपर देने जा रहे हैं, पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, और उनकी ये ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन बने, या पाकिस्तान एयरफोर्स में कमीशन ऑफिसर बने, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, या किसी भी सर्विस को वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेटा आपको सख्त मेहनत करना होगी। ठीक है। ये ना हो कि आप पूरा साल पढ़े नहीं, रजिस्ट्रेशन का टाइम है, रजिस्ट्रेशन करवाएं, 10 दिन बाद आपका एग्ज़ाम हो और अल्लाह ना करे अनफॉर्चुनेटली आप वहाँ से फेल होके वापस आ जाएं, तो फिर बेटा फिर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर आप कहें जो जी साल मेरे पास टाइम था, तो मेरे पास जनाब ये भी था, तो वो भी था, तो मेरे पास सारी सहूलियात थी, लेकिन मैंने स्टडी नहीं की है, तो बेटा उस वक्त ये फिर आपके ऊपर बात बड़ी फिट आएगी कि इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। ठीक है। अगर हम इसके ना वो मीनिंग्स भी अगर इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग करें, कहते हैं इट इज़ नो यूज़ ऑफ क्राइंग, कहते हैं अब रोने का कोई फायदा नहीं। इट इज़ नो यूज़, कोई फायदा नहीं। ओवर स्पिल्ड मिल्क, भाई आप बाजार गए थे, 2 लीटर आपने दूध लिया, 1 लीटर दूध लिया, कहीं आपका पाँव स्लिप हुआ, अनफॉर्चुनेटली आपसे वो दूध ज़मीन के ऊपर बह गया, स्पिल्ड हो गया। ठीक है। अब आप उसको इकट्ठा नहीं कर सकते, वो आलूदा हो गया, ख़राब हो गया, उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। तो कहते हैं आप जब दूध ज़मीन के ऊपर बह गया ना, तो फिर उसके ऊपर रोने धोने की, चीखने चिल्लाने की कि हाय मैं मर गया, तो दूध मेरा जो उसके ऊपर ज़ाया हो गया। तो फिर टाइम के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असल इसके अंदर आपके लिए एक अखलाकी, एक मॉरल लेसन है, अखलाकी सबक है कि आप हमेशा टाइम पे मेहनत करें। अभी आपके पास बेटा टाइम है, अभी आपने अपने आप को रजिस्टर्ड भी नहीं करवाया, अगर करवा भी लिए तो फिर आपको बड़ा एक टाइम पीरियड मिल गई है, उसी टाइम पीरियड में आप अपनी तैयारी मुकम्मल करें। कल ऐसा ना हो कि अब क्या पछताए होत जब चिड़ियां चुग गईं खेत। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। और साथ बेटा आपको मैंने पीस ऑफ एडवाइस भी की है कि अपनी मेहनत के बगैर, हार्ड वर्क के बगैर आप दुनिया का कोई इम्तिहान पास नहीं कर सकते। देखें जनाब, ये आपका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ प्रोसीड हम करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये नीचे 4 ऑप्शन हैं, इनमें से जनाब आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और वही आपने जवाब देना है। अब हम देखना चाहते हैं कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। द डॉग बार्क्ड द बेगर्स, द डॉग बार्क्ड फॉर, कुत्ता फकीरों के लिए भौंका। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कुत्ता फकीरों की तरफ से भौंका, फ्रॉम बेगर, द डॉग बार्क्ड फ्रॉम बेगर, की तरफ से। ये लफ्ज क्या है? फ्रॉम, की तरफ से। हम बेटा इसको यहाँ पे नहीं लगा सकते, ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन फिर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन, फार का मतलब होता है के लिए, ये मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है कि प्रेपोजिशन का जो इस्तेमाल है, बहुत हरूफ जार का जो इस्तेमाल है, बहुत ही एहतियात के साथ आपने करना है। एट, पर, ऊपर, ओवर, ऊपर, किसी चीज के ऊपर रख देना, ओवर। ठीक है।
अब ये भी दुरुस्त जवाब नहीं है। अब जो हमारा जो दुरुस्त जवाब है वो है एट। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर्स टू आवर क्वेश्चन नंबर 12। जी बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये फिर वही है, प्रेपोजिशन का इस्तेमाल है। ठीक है, डू नॉट बीट, फार बुश, फ्रॉम बुश, इन बुश, अबाउट बुश। ठीक है, ये असल में देखा जाए तो हम कहते हैं ना, कोई बंदा मकसद की बात ना करे, हम कहते हैं इधर उधर की मत हंको। इधर उधर की, इधर उधर, मैं लिख देता हूं, इधर उधर की मत हंको, की मत हंको। इसके लिए जो लफ्ज हंको मीन बात करना, इधर उधर की मत हंको। ठीक है, ये थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए अच्छा लिखा जाए और आपको सही समझ आएगा। इधर उधर की हाँकना, फजूल बातें करना, पॉइंट के ऊपर बात ना करना। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है और डिस्कस क्या कर रहे हैं, आपसे पूछा क्या जा रहा है, आप जवाब क्या दे रहे हैं। तो अगर कोई आपसे इस तरह की बात, फोर्स भी यही करता है कि भाई प्लीज कम टू द पॉइंट, व्हाट यू आर टॉकिंग नाउ, व्हाई यू आर बीटिंग अबाउट द बुश। ठीक है, कि झाड़ियों में इधर उधर क्यों घूम रहे हो। ये झाड़ियां, बुशेस जो क्या होती हैं, झाड़ियां। बीट अबाउट, इधर उधर फिरना, घूमना, मारना, पीटना उनको। ठीक है, वहां पे घूमते रहना और काम की बात ना करना। तो यहाँ पे लफ्ज आएगा आपका डू नॉट बीट अबाउट द बुश। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 है, मैनी पीपल ट्रेवल। अब बहुत सारे लोग सफर करते हैं बजरिया, ट्रेवल फॉर एयर, जहाज में सफर करते हैं। किसके लिए करते हैं, फॉर एयर, बिल्कुल रॉन्ग है। इन इन एयर, हवा में उड़ते हैं। भाई ऐसे हवा में तो खुद तो बंदा नहीं उड़ सकता, किसी जहाज के ऊपर उनको चढ़ना पड़ेगा। और ओवर एयर भी बिल्कुल रॉन्ग है। और जो आपका दुरुस्त जवाब है वो है बाई एयर, यानी कि वो बजरिया। बाई का मतलब होता है बजरिया। बाई का इस्तेमाल आप कहाँ पे करेंगे, वो बजरिया ट्रेन गया, वो कराची बजरिया ट्रेन गया। ही वेंट टू कराची बाई ट्रेन, ही वेंट टू कराची बाई ट्रेन। और वो बजरिया जहाज गया कराची, ही वेंट टू कराची बाई एयर, बाई एरोप्लेन। और एक और बात बेटा नोट कर लें, ठीक है, वो पैदल आया, ही केम ऑन फुट। ठीक है, उसके लिए हम आप ऑन फुट का इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए आप बाई फुट नहीं कहेंगे बेटा। लिहाजा इन प्रेपोजिशन के जो इस्तेमाल है वो भी आपने बहुत एहतियात से करना है। लेट्स सी इट्स एक्यूरेट आंसर। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, मैनी पीपल ट्रेवल्ड बाई एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। शी इज बेड, शी इज फ्रॉम बेड, वो बेड की तरफ से है, ये भी फिक्रा गलत बनता है। शी इज फॉर बेड, वो बेड के लिए, ये भी गलत है। शी इज अमंग बेड, ठीक है, अमंग का इस्तेमाल बहुत गलत हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल ये नहीं है। शी इज इन बेड जो है बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, वो बिस्तर के अंदर है, वो अपने बिस्तर में मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करें इसके रिप्लाई की तरफ। ऑप्शन नंबर ए is accurate reply to the question number 15. Students, choose the correct options। फिर वही है, they are sitting। ठीक है, they are sitting old friends। अब बेटा यहाँ पे they are sitting in, अंदर को, दोस्तों के अंदर तो कोई नहीं बैठता, दोस्तों के साथ बैठा जा सकता है। they are sitting from friends, ये भी नहीं है। they are sitting for, वो अपने पुराने दोस्तों के लिए बैठी हुई हैं, ये भी यहाँ पे दुरुस्त नहीं है। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक लफ्ज बचता है among। एक लफ्ज आपने पढ़ा होगा अंग्रेजी जुबान में, बिटवीन। दो अल्फाज आप थोड़े से आपके लम में इजाफा कर दूं बेटा, आपकी अंग्रेजी को सीधा कर दूं और इम्प्रूव कर दूं, अगर उसमें कोई मामला गड़बड़ है तो मामला सीधा कर देते हैं। एक लफ्ज होता है अमंग, एक होता है बिटवीन। अच्छा, जब मामला सिर्फ दो बंदों के दरमियान हो तो फिर बात होती है बिटवीन। अच्छा, हम कहेंगे ही वॉज सिटिंग बिटवीन अली एंड नासिर, एक लफ्ज हमने इस्तेमाल कर दिया बिटवीन का। जब दो बंदों की बात हो तो बिटवीन होगा। ही वॉज सिटिंग, ही वॉज सिटिंग अमंग अली, नासिर, एमन एंड नसीर। तो बहुत ज्यादा दोस्तों के दरमियान में बैठे हुए, तो फिर आप दो से ज्यादा की जब बात हो जाए ना, तीन या तीन से ज्यादा की बात हो जाए, तो फिर आप अमंग का इस्तेमाल करेंगे। और इसका भी ये दुरुस्त जवाब है। अगर कोई सवाल कहें कि सर यहाँ पे तो, यहाँ दो तीन तो नहीं लिखा हुआ ना, यहाँ पे तो बेटा फिर दो भी तो नहीं लिखा हुआ ना, इसलिए हम यहाँ पे बिटवीन नहीं लगा सकते। यहाँ पे दे आर सिटिंग, पता नहीं कितने लोग हैं भाई, काफी सारे लोग हैं। तो काफी सारे लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, अपने दोस्तों के दरमियान में बैठे हुए हैं। अमंग का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, बिटवीन का लफ्ज हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यूज ऑफ बिटवीन और अमंग आपको समझ भी आ गया होगा और आप इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी कर सकेंगे। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 17। स्टूडेंट्स, आप ये क्वेश्चन थोड़े से और आ गए हैं जनाब। ये क्वेश्चन आपके हैं
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, वो तो यहाँ पे अभी सेंटेंस को आएंगे तो इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जो अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 है, ये है चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब बेटा आप, ये पूरा एक टॉपिक है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो भी बना रहा हूँ और उसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। एक छोटी सी इसकी वजाहत करता चलूँ। डायरेक्ट स्पीच जो होता है, ठीक है, these are the actual words of a speaker who has already uttered from his mouth, and the same words are elaborated in inverted commas if the speaker has told something. These are called the direct speech. और दूसरा होता है indirect speech. Indirect speech ये होता है, these are, you can say, the words of speaker, but these are amended form, these are in the amended form, ठीक है। These are not the actual words, but you can say the sense of the sentence will remain same, but the words will be changed by the person who is telling something, who has listened something from anybody and telling to some others about the person who has told him any story or anything. So that is called indirect speech, ठीक है। इसमें डायरेक्ट बात बताई जाती है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अब डायरेक्ट स्पीच में देखा जाए तो इस सेंटेंस के दो हिस्से बनते हैं, ठीक है। एक पहला हिस्सा है और एक इसका दूसरा हिस्सा है। जैसे फातिमा है, फातिमा सेड टू हर फ्रेंड, सॉरी हम इसको हिज नहीं कहेंगे क्योंकि ये शी है और फीमेल है, तो इसके लिए हम हर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे भी हर का इस्तेमाल हुआ है। और दूसरा जो पार्ट है सेंटेंस का, ये भी मैं आपको बताता हूँ। बेटा जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इनको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि कुछ स्टूडेंट के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है और वो चीज़ों को क्रैम करते रहते हैं और इनके जो रूल्स हैं या तरीक़ाकार है, मीन्स मेथड्स हैं इनको चेंज करने के, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट जाने के, वो उनको पता नहीं होते, चीज़ें मिक्सअप करते रहते हैं और इस तरह वो गलतियां करते रहते हैं। तो ये है रिपोर्टिंग स्पीच कि कौन क्या रिपोर्ट कर रहा है। फातिमा रिपोर्ट कर रही है अपने दोस्त को, फातिमा ने अपने दोस्त को बताया, क्या रिपोर्ट किया, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड। पहला वाला होता है रिपोर्टिंग और ये क्या है? रिपोर्टेड। दिस इज दी रिपोर्टेड स्पीच। क्या रिपोर्ट हुआ है जनाब, वो हमने देखना है। अब देखें, रिपोर्ट से किया लेट्स गो फॉर ए वॉक, ठीक है। ये उसने रिपोर्टेड की है कि चलो चलें, सैर के लिए चलें। अब देखें बेटा, इसके अंदर एक फिक्रे को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है इसके अंदर कोई ना कोई तजवीज़ दी गई है, प्रपोज किया गया है, बताया गया है। तो लिहाजा हम इसको ऐसे चेंज करेंगे विदाउट सीइंग ऑप्शंस। फातिमा टोल्ड हर फ्रेंड दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक। आप चेक करें ऑप्शन नंबर डी, ये इसके अंदर भी इसका जवाब मौजूद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी के अंदर देखें तो यहाँ भी जवाब नहीं है। सी के अंदर देखें तो यहाँ भी जवाब नहीं है। फातिमा ऑर्डर्ड, यहाँ पे इसके रिक्वेस्टेड ऑर्डर, इस पे भी नहीं है। और फातिमा प्रोपोज्ड, ठीक है, उसने ये तजवीज़ दी कि उन्हें सैर के लिए जाना चाहिए, वॉक के लिए जाना चाहिए। द एक्यूरेट रिप्लाई टू द क्वेश्चन नंबर 17 इज दैट इज ऑप्शन नंबर अल्फा। दूसरा क्वेश्चन जो 18 नंबर पे, हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा था, हर हस्बैंड हैड बीन सिटिंग आइडल सिंस मॉर्निंग, कि उसका जो शोहर है सुबह से निकम्मा बैठा हुआ था। एक है आइडल, ठीक है बेटा, इसके ऊपर सिमिलर वर्ड्स आ सकते हैं। एक होता है आइडल, IDOL आइडल, एक होता है आइडल, IDOL आइडल। ये बुत के मानों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये जो हिंदू जिसकी पूजा करते हैं बुत, ठीक है, बुत, उसको हम कहते हैं आइडल। और एक होता है आइडियल। क्या लफ्ज़ होता है? आइडियल। ये लफ्ज़ थोड़े से मिलते जुलते हैं, लिहाजा आप इनका डिफरेंस नोट कर लें। आइडियल होता है मिसाली, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, दैट इज कॉल्ड आइडियल। चलिए हम प्रोसीड करते हैं। हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पे कैसे कन्वर्ट करते हैं। दी मदर सेड हर हस्बैंड हैज बीन सिटिंग आइडल सिंस मॉर्निंग। जी, हर मदर टोल्ड, इस सेड को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। इन इन्वर्टेड कामास जो आ गए आपके पास, इनको आप रिप्लेस करेंगे दैट के साथ। हर मदर टोल्ड दैट। अब ये बेटर नोट कर लें, यहाँ पे एक हर जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है यहाँ पे तो वो आपके इसके सब्जेक्ट के साथ चेंज होंगे। अगर आपके इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो वो आपके ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होंगे। अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, दे विल नॉट बी चेंज, दे विल रिमेन स्टैंड स्टिल।
फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन भी आपको पता होने चाहिए, सेकंड पर्सन प्रोनाउन भी पता होने चाहिए, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन भी आपको पता होने चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई माई मी वी आवर अस, सेकंड पर्सन है यू यूर यू, थर्ड पर्सन है ही हिज हिम शी हर इट इट्स दे देयर देम। ये जनाब पर्सनल प्रोनाउंस हैं, इनको अच्छी तरीके से याद कर लें, और इनकी जो चेंज है मैंने आपको बता दी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के ऊपर जो इंशाल्लाह हमारी वीडियो है उसके ऊपर हम आपको डिटेल से बताएंगे। नाउ आगे हम प्रोसीड करते हैं। दैट हर हस्बैंड, अब देखो बेटा बाहर पास्ट है, अगर पास्ट है तो अंदर प्रेजेंट वाली फॉर्म भी पास्ट में चली जाएगी। अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या कंटिन्यूअस है? अंदर है प्रेजेंट हैज बीन सिटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चली जाएगी। ठीक है, हर मदर टोल्ड दैट हर हस्बैंड हैड बीन, ये हैज किस में चेंज हो जाएगा? हैड बीन में। हैड बीन सिटिंग आइडल सिंस मॉर्निंग, तो ये बाकी फिक्र एज इट इज होगा। यहाँ पे आप देखिए हर मदर टोल्ड हर दैट, हर टोल्ड को भी आप आस्ट में भी कह सकते हैं। ठीक है, ये भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, दैट हर हस्बैंड हैड बीन सिटिंग आइडल, ऑप्शन नंबर ए में देखें तो दुरुस्त है या नहीं है? वाज सिटिंग, ये रॉन्ग है। आस्ट हर हस्बैंड वाज सिटिंग, ये भी रॉन्ग है। हर मदर टोल्ड हर टोल्ड आस्क हर टू हस्बैंड सिटिंग आइडल सिंस मॉर्निंग, ये भी रॉन्ग है। और जो आपका दुरुस्त जवाब है वो फिर सी है जनाब। हर मदर टोल्ड हर दैट हर हस्बैंड हैज बीन सिटिंग आइडल सिंस मॉर्निंग। दुरुस्त जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई ब्रदर सेड इट इज 4 o'clock नाउ, माई ब्रदर टोल्ड दैट इट वॉज 4 o'clock देन। ये सेंटेंस बनता है बेटा, आप इसको ढूंढे कौन सा ऑप्शन है। माई ब्रदर टोल्ड दैट इट वॉज 4 o'clock नाउ नहीं आएगा बेटा। ठीक है, दैट इट वॉज 4 o'clock नाउ ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, माई ब्रदर टोल्ड दैट इट वॉज, अब बैर पास्ट है बेटा, ये अंदर प्रेजेंट है, ये इसको भी पास्ट में जाना चाहिए। ठीक है, इसमें पास्ट में चली जाएगी, दैट इट वॉज 4 o'clock देन। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। ऑप्शन नंबर, माई ब्रदर टोल्ड दैट इट वाज 4 o'clock, टोल्ड, ये आस्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं, ये भी नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, और आपका जो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 20। स्टूडेंट्स, Ali said I am going to Swat, Ali told that he was going to Swat, Ali told that he was going to Swat। दोस्त ऑप्शन कौन सा है जी? Ali told that he is going, ये भी रॉन्ग है। Ali proposed, ये रॉन्ग है। Ali asked, ये भी रॉन्ग है, और दुरुस्त जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हुआ। स्टूडेंट, चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, वही बात है, द टीचर सेड टू स्टूडेंट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब बेटा देखें यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए तो उसकी किसी किस्म की कोई टेंस या प्रोनाउन चेंज नहीं होंगे। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे अल्लाह इज वन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, प्राइड हैथ ए फॉल, ये सारी चीजें बिल्कुल एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इनके अंदर किसी किस्म की चेंज नहीं होगी। तो लिहाजा हम इसको चेंज करते हैं, द टीचर टोल्ड हिज स्टूडेंट्स दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये जो दुरुस्त है हमेशा इज रहेगा। ये ए वाला जो ऑप्शन जिसके अंदर आप देख सकते हैं, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ वाज इस्तेमाल किया जा रहा है, दिस इज आल्सो रॉन्ग। द टीचर एडवाइज्ड, एडवाइज भी नहीं किया, सिर्फ बताया है टीचर ने, यहाँ पे एडवाइज्ड की है दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। टीचर एडवाइज हिज स्टूडेंट दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द टीचर एडवाइज टू हिज स्टूडेंट दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे टू लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, ये वाला ऑप्शन सी और डी दोनों आपके रॉन्ग है। द टीचर एडवाइज्ड हिज स्टूडेंट्स दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नंबर 22 पे चलते हैं। चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई टेक मिल्क एट 9 o'clock डेली, ही टोल्ड दैट ही, अब देखिए बाहर पास्ट है, अंदर भी पास्ट लेके जाएंगे, दैट अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, इसको इसके साथ चेंज करेंगे सब्जेक्ट के साथ, दैट ही टुक मिल्क, यहाँ पे क्या आएगा? दैट ही टुक मिल्क एट 9 o'clock। ठीक है, ये ऑन 9 o'clock वाला ये फिक्रा बिल्कुल गलत है। ठीक है, ही टोल्ड दैट ही टुक मिल्क एट 9 o'clock, ये जो टेक वाला सेंटेंस है ये भी गलत है, ये भी इसके अंदर मिस्टेक है, ये भी इसके अंदर मिस्टेक है। और उसके बाद आस्क दैट ही टुक मिल्क, ये आस्क वाला जो लफ्ज़ है ये भी बिल्कुल गलत इस्तेमाल कर रहा है, जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है, दिस इज आल्सो रॉन्ग। ठीक है,
और हमारे पास एक ही फिक्रा बचता है जो कि दुरुस्त है। ही टोल्ड दैट ही टुक मिल्क एट 9 o'clock डेली। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट रिप्लाई टू क्वेश्चन नंबर 22। सेड ए लॉस। अब देखो बेटा, डॉक्टर ने बताया एलास, ये देखिए एलास, हुर्रा, आहा, वावा, ब्रेवो, उफ, आ, इस किस्म के जो अल्फाज हैं ये हमेशा इस्तेमाल होते हैं कौन से सेंटेंस के अंदर? आप याद करें तो आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर आपने पढ़े हैं तो उनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके सामने ये जो सेंटेंस है ये भी एक्सक्लेमेटरी है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिनको हम इस्तिजाबिया जुमले भी कहते हैं, ऐसे जुमले जिनके अंदर यकदम खुशी या गम का इजहार पाया जाए। ठीक है, कोई खुशी की खबर सुनाएगा तो आहा, हुर्रा, वाह वाह, ब्रेवो हम कहेंगे। जब गम और परेशानी और मौत की खबर कहीं सुनेंगे, ओहो, एलास, ओह नो, अफसोस, इस तरह के हम अल्फाज अपने मुंह से निकालेंगे। ये एलास का लफ्ज भी अफसोस के मानों में है, द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है, द डॉक्टर एक्सक्लेम्ड, जयफुली नहीं होगा भाई, जयफुली तो होता है बिल्कुल ओ बड़ी खुशी के साथ, ये लफ्ज जयफुली बिल्कुल रॉन्ग यूज हो रहा है, दिस आल्सो रॉन्ग। द डॉक्टर एक्सक्लेम्ड सारोफुली। ठीक है, इफ का लफ्ज बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल होगा, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। द डॉक्टर एक्सक्लेम्ड, ठीक है, दैट पेशेंट हैज डाइड, पेशेंट हैज डाइड, ये भी ग्रामेटिकली ये तीनों सेंटेंस गलत किए गए हैं। लिहाजा जो दुरुस्त सेंटेंस है, द डॉक्टर एक्सक्लेम्ड सारोफुली, ये बिल्कुल दुरुस्त कहा है इसने, दैट द पेशेंट हैड डाइड। अब देखो बेटा, बायर पास्ट है और अंदर ये प्रेजेंट था और ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चली जाएगी और बाकी के सेंटेंस अकॉर्डिंगली रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक हम इसको चेंज करेंगे। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये दुरुस्त फॉर्म ऑफ वर्ब आपने इस्तेमाल करनी है। ही हैज द एग्जामिनेशन, पास, पासेस, पास्ट, नन, ये जो ऑप्शन है ये दुरुस्त है, ये वाला ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है और ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग है। जो दुरुस्त जवाब है ही हैज पास्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसके अंदर हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। Accurate reply to the question number 24 is option number C. Students, this is the next question. Use the correct form of verb. He smelled the rice. He smelled the rice. उसे उन चावलों की बू आई जो कि किचन के अंदर जल गए थे या जले थे। He smelled the rice burnt in the kitchen. जो दुरुस्त जवाब है इसका burnt है, बाकी इसके रॉन्ग आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो आपके इस इंग्लिश के पेपर के बारे में थी। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके अल्फाज के साथ एक्सप्लेन भी की हैं और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आप इसको बार बार देखेंगे तो आपके जो ग्रामर का इस्तेमाल है, करेक्ट स्पेलिंग का इस्तेमाल है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। इंशाल्लाह आपको ये पेपर में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी और मज़ीद इंग्लिश की ग्रामर सीखने के लिए हमारी बाकी वीडियोज़, आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखें और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नॉलेजफुल वीडियोस आपको फ्री ऑफ कास्ट घर पे बैठे बैठाए मिलती रहें। से गुजारिश है कि हमारे चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ इससे आपको बहुत ज़्यादा इल्म मिलेगा और आपको फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह हमारी फैकल्टी के तजर्बात से आप फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान की जो बहादुर अफवाज हैं उनका एक इंशाल्लाह बेहतरीन हिस्सा बनेंगे और अपने मुल्क कौम के इस दिफा के अंदर आप अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।